वो अब आप बैठिए। तो सर वाइंड अप हो गई है। जीएमआर का घोटाला भी उस समय रह गया था, उसका जिक्र करना मैं भूल गया था। आज देश में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इस देश में घोटाला भ्रष्टाचार की चर्चा वो कर रहे हैं जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा घोटाले हुए सीएजी की रिपोर्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं। और उसके साथ अरे करेंगे, हम करेंगे, कर देंगे, हाँ कर देंगे। अरे बैठिए आप, बैठिए। और चेयरमैन साहब, दुर्भाग्य यह है कि भ्रष्टाचार पे आज वो चर्चा वो लोग कर रहे हैं जो खुद, जिनका पूरा परिवार जमानत पर है। जमानत अब जेल चले जाएंगे, पता नहीं। नेशनल हेराल्ड केस जेल में चले जाएंगे। उस पे कौन जमानत पर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं नाम लिया। लेकिन वो लोग इस बात की चर्चा आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा घोटाले हुए। आप तो रोज समझौते करते हैं। आज रोज आपकी नीतियां बदलती हैं। आप रोज नए समझौते करते हैं। आज आपने उसके साथ समझौता किया जो आज इस देश में संविधान, जिसने 370 और 35A का विरोध किया, जो पार्टी कश्मीर की है, उसके साथ भी, जिसको देश तोड़ने की और जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उसके साथ आपने भारत जोड़ो यात्रा, देश तोड़ने वालों के साथ आपने भारत आपके साथ रहे। आप हमें समझाते हैं, आप हमें समझाइए कि देश को तोड़ने वालों के साथ आपने भारत यात्रा की, कश्मीर में उन लोगों के साथ आपने यात्रा करने का काम किया। Honorable members, please. सर मैं बैठ जाता हूं। Honorable members, one second. I can take it. बैठिए. One second. Honorable members, सर have my assurance. चेयरमैन, I am taking note of everything. If there will be expediency and requirement of a document to be authenticated, yes, and I find that such a document is already authoritatively in public domain, yes. I may skip that, rest I'll call upon. Yes. Go ahead. Sir, ये बात सही and be है। cautious about it. बिल्कुल, सर। And ये बात I सही है may कि- indicate to you, honorable member, I have given such a direction to some other members. There has been non-compliance of that. I am taking steps because such a transgression has to lead to exemplary consequences. So be aware of it. Go ahead. धन्यवाद सभापति जी। इस देश में मैं अपने को सीमित करना चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देश की जो पॉलिसी पैरालिसिस था, उस पे मैं इस सदन का ध्यान, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया। अगर मैं बात करूं, इस देश में 2000 यूपीए की जब सरकार थी, उस समय इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे प्रोजेक्ट्स थे, उनकी हालत क्या थी? अभी बताएंगे तो थोड़ा सब्र कीजिए। क्या चोरी की आप? थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र। अगर आप सच नहीं सुनना चाहते हैं, Take your seat. तो मैं क्या कर सकता हूं? Take your seat. Mr. Nagar, one second. क्यों नाराज हो? Ranjita ji, तो मैं बताऊं। honorable member. आज बताएंगे। आपके पास कभी नहीं बैठे थे। आप चोरों के One साथ कभी नहीं second. बैठे। चोरों के साथ कभी नहीं बैठे। आप जान- One second. Mr. Muralidhar, what is happening to your benches? इनके साथ Sit down. सर अपने बारे में सोचिए। Would you sit down? Honorable members, अपने बारे में सोचिएगा।
अपने दिमाग पर Honorable members, Honorable member Mr. Nagar, Mr. Nagar, take your seat. Mr. Nagar, I do not approve of this conduct. 1 second please. Mr. Nagar, I am not yielding any. no, I don't approve this conduct. Some member speaks, that's transgression. You start communicating. Okay. Sorry. It is so elementary. Please take your seat. Take your seat. Take your seat. सर व्यक्तिगत Why are you contributing chaos in the house? सर Please, I have not given, I have not called upon you to speak. Honorable members, please, Honorable Minister. So the treasury benches, if they behave like this, sit down. Honorable members, it is with pain that both sides in the house are working in a manner that is not desirable. The members are not required to speak to each other directly. We are violating something which is textbook preposition, meant even for newcomers. Mr. Nagar he started reacting. There is someone sitting in this chair. The one sitting in this chair has authority, and that authority is by way of constitutional obligation. It is my bounden duty to ensure order in the house. If there is disorder in the house created by anyone, I have to ensure consequences flow. You have contributed to disorder. Even two of the senior members from this house started speaking. Are we in chorus? I would urge everyone to listen to every speaker in silence, with rapt attention. If you have an objection, Yes. take recourse to rules. Yes. There may be an objection, there may be other point of view. Raise it in accordance with rules. Don't jump on your seat immediately. And what I find is, senior members need to guide others. Fact is, they are taking lead in this. I am sure the House will bear this in mind. Mr. Nagar. सभापति जी, मैं इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश के भी उस हिस्से से आता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को हमारे विपक्षी दलों ने बीजेपी का घोषणा पत्र कहा। मैं कुछ चीजें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपको भी उसकी जानकारी है, फर्क घोषणा और संकल्प पत्र में क्या है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। क्योंकि मोदी सरकार संकल्प लेती है और उसे पूरा करती है, और जो यूपीए सरकार थी वो घोषणा करती थी, उसे पूरा नहीं करती। इसका मैं उदाहरण कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, और इसका उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं, मैं वेस्ट यूपी से आता हूं, नोएडा से हूं मैं, मेरठ उससे जुड़ा हुआ है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे कब सैंक्शन हुआ? 96 किलोमीटर का था। इसकी घोषणा यूपीए की 2006 और ये कंप्लीट किसने किया? मोदी जी ने 2018 में नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया। और इसका लाभ किसी विशेष, ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष लोगों का लाभ हुआ हो। जिस एनसीआर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए, उसी से जुड़ा हुआ यह प्रोजेक्ट था। और आज जिस मेरठ को जाने में 2.5 घंटे का समय लगता था, आज 45 मिनट से दिल्ली में आप मेरठ पहुंच जाते हैं। यह काम किया है, यह हालत थी, यह सुधार हुआ है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। दिल्ली में प्रदूषण की चर्चा, दिल्ली में हमेशा पॉल्यूशन की चर्चा होती है। एक समय आता है पॉल्यूशन की चर्चा होती है, उससे सब लोग प्रभावित होते हैं। उसके लिए कई बार योजनाएं बनी कि किस तरीके से जो हमारा व्हीकल्स हैं उनके पॉल्यूशन को किस तरीके से कम किया जा सकता है। उसके लिए योजना बनाई कि जो ट्रक्स हैं, जो हैवी ट्रैफिक है, हैवी व्हीकल्स हैं,
उनको दिल्ली में उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए और उनके लिए एक ऐसा रोड बनना चाहिए कि जो दिल्ली में एंटर भी ना हो और दिल्ली के बाहर से निकल जाए, जिससे दिल्ली की जनता को इस प्रदूषण से मुक्ति मिल सके उनके लिए। ईस्टर्न पेरिफेरल जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, वहां से भी वो होकर गुजरता है। सभापति जी, क्या है स्थिति है इसकी? ये सैंक्शन कब हुआ? 2006 2006 में यूपीए की सरकार में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। अब नहीं हुआ। और इससे बड़ी बात आप देखिए, मैं वो भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो है हुआ है, मैं वो उसकी चर्चा कर रहा हूं। 2006 में इसकी जो बिडिंग है वो एक बार नहीं कई बार कैंसिल की गई, कई बार कैंसिल की गई। अब पता नहीं इसके पीछे इच्छा क्या थी, या तो दिल्ली की जनता को प्रदूषण से मुक्ति नहीं देना चाहते थे, इच्छा नहीं थी। लेकिन यह काम अगर किसी ने पूरा किया 2018 में, मोदी सरकार ने 2018 में ईस्टर्न पेरिफेरल बना के इस दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए काम किया। अभी मैं नॉर्थ में रह गया अभी तो, अब मैं चला अगर साउथ की बात करूं, हमारे कर्नाटक के साथी भी हैं, शिवाजी आज नहीं है हमारे यहाँ। ऑनरेबल मेंबर, नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इज थ्रू मी। ओके, Look at me. एग्री सर। और मेरा चेहरा भी ठीक ठाक है। ठीक, नहीं सर, बहुत इंप्रेसिव है सर, उससे प्रेरणा मिलती है हमें। नहीं, शेर भी हमारे आप हैं, आप भी हमारे हैं। सर, बेंगलुरु वो चेन्नई एक्सप्रेसवे, ये साउथ में है। ये सैंक्शन कब हुआ? 2011। काम कब शुरू हुआ? यूपीए सरकार ने 2011 में एक सैंक्शन किया है और इसको पूरा 2024 करने कौन जा रही है? एनडीए की नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और इसका लाभ किसको मिलेगा? इसका लाभ किसी विशेष आदमी को नहीं मिलेगा। जो दूरी है चेन्नई और बेंगलुरु के बीच की, वो 3 घंटे से दूरी घटेगी। ये काम करने का काम नरेंद्र मोदी जी को करना है। रोड से कांग्रेस वाले भी जाएंगे, कांग्रेस वाले भी उसी रोड से जाएंगे। मेरे पास और अटल टनल की हम बात करें, अटल टनल के प्रोजेक्ट किसने बनाया? आप लोगों ने सपना देखा, घोषणा की, लेकिन पूरा किसने किया सर? पूरा किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार। यह फर्क है दोनों में, घोषणा और संकल्प में, जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। अगर आप चले जाएं भूपेन हजारिका सेतु, अगर आसाम पहुंच जाएं आप, किसने सैंक्शन किया? यूपीए ने सैंक्शन किया 2003 सर, 2003। और कंप्लीट किसने किया? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2017 में से पूरा करने का काम किया। ये तक कुछ नहीं हुआ, ये भी बताओ। अब आप आ जाइए कंक्लूड। एक और ब्रिज है हमारा, सोनोवाल जी का है डिब्रूगढ़ से धेमाजी ब्रिज है हमारा। अच्छा, हाँ, ये अच्छे से बता सकते हैं। कुछ नाम लेने में थोड़ा मुझे प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कमी कहीं हो, लेकिन सर स्थिति क्या थी? ये प्रोजेक्ट सैंक्शन कब हुआ? ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ 1997 और इसको पूरा किसने करा? इसको पूरा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2018 में पूरा कर दिया। इससे फायदा क्या होगा? अभी हमारे मित्र बैठे हैं मनोज झा जी, बिहार को लेके दिल बड़ा होना चाहिए। सोच छोटी सोच, थोड़ा दिल बड़ा करो, सोच बड़ी करो, देश के लिए सोचो। हम तो रोड बड़ा कर रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा
कोसी रेल ब्रिज महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था बिहार का, कब इनिशिएट हुआ? 2003। महत्वपूर्ण, मिथिला शायद वो जोड़ता है, वो मिथिला से दोनों को जोड़ने की दूरी कम करता है, बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है ये बिहार का। ये कंप्लीट हुआ कब? किसने किया ये कंप्लीट? नरेंद्र मोदी जी ने। ये नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने इस ब्रिज को पूरा करने का काम किया, बिहार को तोहफा देने का काम। ऐसे अगर मैं रेल प्रोजेक्ट्स बहुत से ऐसे हैं देश में जिनका मैं अगर जिक्र करूंगा, कश्मीर की बात आई, अभी तो भारत जोड़ के आए तोड़ने वालों के साथ, लेकिन कश्मीर जहां झंडा तिरंगा फहराया गया 370 और 35 से हटने के बाद, लेकिन उसके डेवलपमेंट के लिए आपकी क्या सोच है उसका एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। उसके डेवलपमेंट के लिए आपकी सोच है कश्मीर रेल लिंक प्रोजेक्ट कब सैंक्शन हुआ? 1995। और ये पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने इस कंप्लीट को। ये सोच है हमारे कश्मीर के लिए, ये सोच है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए। जो कुछ विकास का पैसा कुछ लोगों की जेब में जाता था, उससे आम आदमी के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का काम, सबसे बड़ी लाइफलाइन देने का काम इस रेल प्रोजेक्ट को बनाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। इसके अलावा फिर कर्नाटका में चले जाइए आप, बीदर कलाबुरी रेल लाइन है, 110 किलोमीटर की लाइन है। ये सैंक्शन कब हुई? ये हुई 2000। अटका रहा प्रोजेक्ट क्योंकि घोषणा थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार संकल्प लेती है और उस संकल्प को पूरा किया और 2017 में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम एनडीए की सरकार ने करने का काम किया। ये फर्क है हमारी। सभापति जी, आज नॉर्थ ईस्ट की बहुत बात होती है। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा इग्नोर किया गया इस देश में। सिक्किम एयरपोर्ट जिसकी बात मैं करना चाहता हूं, जिक्र करना चाहता हूं, सिक्किम एयरपोर्ट सैंक्शन कब हुआ? 2008। और सिक्किम एयरपोर्ट को पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2018 में। ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारी सोच। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम हमने किया है। अगला उदाहरण मैं देना चाहूंगा, अगर एयरपोर्ट की आप बात करना चाहते हैं। सभापति जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। कंक्लूड। एक दो विषय रख के मैं अपनी बात करना चाहूंगा। उत्तर लास्ट प्रदेश 1 मिनट कंक्लूड। अगर आप 1 मिनट कहेंगे तो फिर मैं आखिर में आ जाता हूं। एक विषय रखना चाहता हूं सभापति जी, कुछ योजनाओं का मैं जिक्र करना चाहता हूं, बाकी चीजें नहीं करना। शहरी आवास योजना का मैं जिक्र करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के गुलावटी में पैदा हुआ, वहीं मेरा घर है। मैं एक दिन 2019 का लोकसभा का चुनाव था, एक कुछ लोग मुझसे मिलने आए, मेरे पड़ोस के थे, अल्पसंख्यक समुदाय से वो लोग थे, और कह रहे थे कि एक व्यक्ति सड़क पे खड़ा होकर कह रहा है, वो अल्पसंख्यक समाज से था, कि मुझे मोदी जी को वोट दें। मेरी भी उत्सुकता बढ़ी। मैंने पूछा कि भाई ऐसी क्या वजह है। मैंने उस व्यक्ति को बुलाया और उसके आसपास के जो लोग थे उस पर दबाव बना रहे थे कि तुझे मोदी जी को वोट नहीं देना, ये प्रेशर उसके ऊपर बना हुआ। ये कांग्रेस वाले थे, कांग्रेस वाले। मैंने सभापति जी, मैं उससे मिला और मैंने पूछा, तुम ईमानदारी से बता, मुझे मेरा पड़ोसी भी था वो, कि मैंने ईमानदारी से बता भाई क्यों वोट देना चाहता। मैंने तो ऐसी भाषा में साधारण शब्दों में उससे पूछा। बोला, सांसद जी
वोट तो इसलिए दूंगा, मैं तो जीवन में कभी नहीं सोचा था मेरा घर भी बन सके, मेरा तो घर मोदी जी ने बनवाया, इसलिए वोट दूंगा। अगर मैं आखिर की बात करूं, एक चीज फार्मर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोगों ने क्रिएट किया, एफपीओ की अगर बात करूं, मैं जिस जनपद से आता हूं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का एक जनपद में एक एफपीओ चलता है, 772 महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। और आज उस जो एफपीओ है हमारा, वो उदाहरण है पूरे देश में। आज वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स पैदा कर रहे हैं, और इसके एक मिनट का समय और लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा। और वो आज स्विट्जरलैंड, जापान, अन्य देशों को फ्रूट वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अंत में मैं सभापति जी, देश के उन लाखों करोड़ों जो लोग हैं, जिनके लिए इस देश के प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हुए, उनकी कुछ बात मैं एक शेर के माध्यम से कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। सुनाओ। वो कह रहे हैं, दुनिया में कोई जान से प्यारा नहीं होता। ये हम सब मानते हैं कि दुनिया में जान से कोई प्यारा नहीं होता, लेकिन वो बाद में इसके बाद क्या कह रहे हैं, कुछ लोग मगर जान से भी प्यारे मिले हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए वो कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।